السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے وہ ایک دریچۂ کرن کا چوتھا حصہ۔ آہٹ پر اس نے مڑ کر دیکھا۔ بنارسی ساڑی کے ساتھ میچنگ نیکلیس اور میک اپ سے سجے چہرے کے ساتھ امینہ دروازے کے درمیان کھڑی تھیں، لیکن دور سے بھی وہ ان کے چہرے سے ان کے غصے کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ وہ دوبارہ مڑ کر الماری سے اپنی مطلوبہ شے ڈھونڈنے لگا۔ اس کے یوں بے نیازی برتنے پر امینہ بیگم نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ کیوں، کہاں جانا ہے؟ وہ اپنی شرٹ نکال چکا تھا۔ کیا تم واقعی اتنے انجان ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہیں آج تمہارے بھائی کی شادی ہے؟ میں آپ کو کل ہی بتا چکا ہوں کہ مجھے اس شادی میں شرکت نہیں کرنی۔ انس، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کیا تماشا بنا رکھا ہے تم باپ بیٹے نے؟ غیروں کے لیے اپنوں کا مذاق بنوانے پر تلے ہو۔ کل مہندی میں کس طرح نیہا کے ماں باپ کو مطمئن کیا یہ میں ہی جانتی ہوں۔ بجائے اس کے کہ تم اپنے باپ کو سمجھاؤ، تم خود ان کے ساتھ مل گئے ہو۔ جن کو آپ غیر کہہ رہی ہیں ان سے ہمارا خون کا رشتہ ہے۔ میں کیسے ابو کو سمجھا سکتا ہوں؟ وہ بڑے ہیں، سمجھدار ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آپ کو نہیں سمجھا سکا۔ تم ماں سے مقابلہ کر رہے ہو؟ مقابلہ نہیں کر رہا، بتا رہا ہوں۔ میں یہاں تمہاری بکواس سننے نہیں آئی، تم سے کہنے آئی ہوں۔ تیار ہو جاؤ، آج تمہارے بھائی کا نکاح ہے۔ تم لوگوں کو ذرا خیال نہیں، وہاں جب وہ باپ اور بھائی کے ہوتے ہوئے بھی اکیلا ہوگا تو اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ انس استہزائی انداز میں مسکرایا۔ یہ بات آپ نے اور دلاور نے کیوں نہیں سوچی کہ آپ لوگوں کی اس حرکت کی وجہ سے چاچو، چچی اور شبنم کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ اور کل جو آپ بغیر کسی وجہ کے ان کے گھر اتنی باتیں سنا کر آئی ہیں، آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہوا ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی؟ اب کی بار اس کا لہجہ غصیلا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا انس، آخر تمہیں اس لڑکی کا اتنا درد کیوں اٹھ رہا ہے؟ کہیں اب اس شبنم نے دلاور سے نا امید ہو کر تم پر تو ڈورے ڈالنے شروع نہیں کر دیے؟ امی، وہ بے ساختہ چیخا تھا، افسوس ہو رہا ہے مجھے آپ کی سوچ پر۔ وہ میری کزن ہے، بہن ہے، دوست ہے، اسے ہمیشہ میں نے اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھا تھا۔ چاچو چچی کے چہرے دیکھتا ہوں تو ڈر لگتا ہے امی کہ آپ نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہے۔ ماں کو بد دعا دے رہا ہے؟ امینہ نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ میں نے کیا کسی کو بد دعا دینی ہے؟ وہ سر جھٹک کر افسردگی سے بولا۔ اب وقت گزر چکا ہے، آپ نے جو کرنا تھا وہ آپ کر چکی ہیں، سو اب آپ مجھے اور ابو کو ہمارے حال پر چھوڑ دیں تو تم نہیں آؤ گے؟ وہ ابرو چکا کر اس سے پوچھنے لگی۔ جواباً وہ خاموش رہا تھا۔ اگر آج تم نہ آئے تو سمجھ لینا انس، آج سے تمہاری کوئی ماں بھی نہیں، کہہ کر وہ رکی نہیں تھی، جبکہ اس نے غصے سے ہاتھ میں پکڑی شرٹ کا گولا بنا کر سامنے دیوار پر دے مارا۔ انہوں نے حیرت سے سامنے کھڑے انس کو دیکھا، جبکہ انس نے ان کی روئی ہوئی آنکھیں دیکھ کر نظریں چرا لی تھیں۔ چچی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس کے پوچھنے پر وہ شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ چاچو گھر میں ہیں؟ اس نے کمرے میں نظریں دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھائی صاحب کے ساتھ باہر گئے ہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ شبنم کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں دیکھتا ہوں۔ وہ سر ہلاتا ہوا شبنم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ ہلکا سا تھپ تھپا کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ شبنم نے جلدی سے آنکھیں صاف کر کے سامنے دیکھا تو حیرانی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تم شادی پر نہیں گئے؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ بے حد حیران تھی۔ بس میری مرضی، کہہ کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی کتاب اٹھا لی۔ تایا ابو بھی نہیں گئے اور تم بھی؟ وہ ابھی تک بے یقین تھی۔ تائی امی نے کچھ نہیں کہا؟ تم نے اچھا نہیں کیا انس، تمہیں جانا چاہیے تھا، تائی امی کو برا لگا ہوگا۔ تمہیں ابھی بھی ان کے برا لگنے کی پرواہ ہے؟ وہ حیرت کے بعد ناراضی سے بولا۔ ہاں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اب مزید کوئی مجھ پر انگلی اٹھائے۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا انس، اگر تم اور تایا ابا یوں ری ایکٹ کرو گے تو کل کو میرے لیے اور پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ پہلے ہی میری وجہ سے میرے ماں باپ بہت دکھی ہیں، میں انہیں مزید دکھی نہیں کرنا چاہتی۔ تو کیا تم اسے معاف کر سکو گی؟ پتہ نہیں، شاید کر دوں یا شاید نہیں، آنے والا وقت اس کا فیصلہ کرے گا۔ فی الحال میں نے خود کو سنبھال لیا ہے۔ انس خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ انس، میری ایک بات مانو گے؟ ہاں بولو۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ تمہیں شادی پر جانا چاہیے۔ انس نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ تم کس مٹی کی بنی ہو شبنم؟ وہ افسوس سے بولا تو شبنم نے مسکرانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ناکام رہی۔ اگلے ہی پل وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ تھوڑی دیر پہلے جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ خود کو سنبھال چکی ہے، ان آنسوؤں میں بہہ گیا تھا۔
बहन के रोने की आवाज़ सुनकर सुम्बुल भागती हुई अंदर आई थी। उसने एक नज़र रोती हुई शबनम को देखा और दूसरी कहर भरी नज़र परेशान खड़े अनस पर डाली। आप लोग क्यों बार बार हमारा तमाशा बनाने आ जाते हैं? जो आप लोग कर चुके हैं क्या काफ़ी नहीं है? वो अनस के सामने खड़े होकर बड़ी बदलिहाजी से बोली थी। आप देख नहीं रहे इनकी तबीयत कितनी ख़राब है? फिर क्यों अपनी शक्ल दिखा दिखा कर उन्हें मज़ीद परेशान कर रहे हैं? अपने घर का जश्न छोड़कर यहाँ क्या लेने आए हैं? सुम्बुल, शबनम ने गुस्से से ऊंची आवाज़ में उसका नाम लिया। कैसे बात कर रही हो अनस से? तो कैसे करूं बात बाजी? ये इसी घर के फ़र्द हैं जिन्होंने हमारी खुशियां छीन ली। इनकी वालदा मोहतरमा थीं जिन्होंने आपके लिए कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे, तो ये किस मुंह से हमारे घर आए हैं? अनस माथे पर बल डाले होंठ भींचे उसे देख रहा था। चुप हो जाओ सुम्बुल, अनस का इसमें क्या कसूर है? तो क्या हमारा कसूर है? वो उल्टा शबनम से पूछने लगी। किसी का कसूर नहीं, किस्मत की बात है। आप दूसरों की गलती को किस्मत पर डाल सकती हैं, मैं नहीं। आप माफ़ कर सकती हैं, मैं नहीं। मैं इनकी शक्ल देखती हूँ तो। वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गई क्योंकि ज़ब्त के बावजूद वो आंसू रोक नहीं पाई थी। आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आइंदा आप हमारे घर ना आएं। सुम्बुल का अंदाज बहुत दो टोक था। अनस ने बड़ी संजीदगी से उसे देखा और कुछ कहे बगैर बाहर निकल गया। आपने बुलाया था अब्बू? अनस ने दरवाजे से झांक कर देखा। वाजिद साहब ने किताब से नज़र हटाकर दरवाजे की तरफ देखा। हाँ आओ बेटा, कुछ मशवरा करना था। जी। वो पूरी तरह उनकी तरफ मुतवज्जो हो गया। तुम्हारी माँ और भाई ने जो किया है वो सब तुम्हारे सामने है। जब मैं अरशद और शकीला की शक्लें देखता हूँ तो एक एहसास निदामत घेरने लगता है मुझे। मैंने शबनम के लिए कुछ सोचा है, सोचा तुमसे पूछ लूँ। वो मुसलसल सवालिया नज़रों से उन्हें देख रहा था और उनका चेहरा देखते देखते जैसे वो चौंका था। एक मिनट अब्बू, इससे पहले आप कुछ कहें मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अम्मी और दिलावर ने जो भी शबनम के साथ किया मुझे इसका बहुत दुख है और आप जानते हैं मैं शादी में भी नहीं गया। शबनम को हमेशा मैंने अपनी बहन माना है। एक पल के लिए वाजिद साहब खामोश रह गए। तुम समझ गए थे मैं क्या कहने वाला हूँ? वो जैसे मुस्कुराकर बोले तो वो सर खुजाकर रह गया। हाँ मैंने ऐसा सोचा था, लेकिन मुझे पता है शबनम भी नहीं मानेगी, इसीलिए पहले तुमसे राय ले ली। बहरहाल एक रिश्ता है मेरी नज़र में। असफर मेरा दोस्त है ना, उसका बेटा इंजीनियर है। उसने खुद बात की थी कोई अच्छी सी लड़की नज़र में हो तो बताना। ये उसका कार्ड है। उन्होंने जेब से कार्ड निकालकर अनस की तरफ बढ़ाया। पहले इसके बारे में पता करवाओ, तसल्ली होने पर उन्हें लड़की दिखा देंगे, फिर जो अल्लाह को मंजूर। जी अब्बू, वो कार्ड पर नज़रें दौड़ाते हुए बोला। तभी दरवाज़ा खुलने पर दोनों ने मुड़कर देखा जहाँ से अमीना अंदर आ रही थी। मुझे देखकर आप दोनों को चुप क्यों लग गई? उन्होंने बैठकर दोनों को बारी बारी देखा। इन दोनों को खामोश देखकर उन्हें गुस्सा ही आ गया था। ये आप बाप बेटे ने खुद साख्ता चुप का रोज़ा तोड़ना है या नहीं? यानी कि हद हो गई। 1 महीना हो गया दिलावर की शादी को, लेकिन मजाल है आप दोनों ने ठीक से नेहा से बात की हो। क्या सोचती होगी वो? और दिलावर हनीमून पर जाने से पहले आपसे पूछने आया था तो आपने उससे बात भी नहीं की। पूछने आया था या बताने आया था? अब के वाजिद साहब चुप नहीं रह सके। तो और क्या करता? उसके साले ने उसे सिंगापुर की टिकटें गिफ्ट की थी, तो क्या वो मना कर देता? इतने दिल वाले हैं मेरे दिलावर के ससुराल वाले, इतने मोटे कड़े, इतना बड़ा सेट दिया मुझे उन्होंने। रिश्तेदारों की आंखें फटी की फटी रह गईं। यही जो मैं आपके फटीचर भाई के घर अपना लड़का ब्याह देती तो मिलना क्या था सिवाय बातों के। वह नखुवत भरे अंदाज में बोली। मुझे पता है आप ये सब अपनी भतीजी के कहने पर कर रहे हैं, वही आपके कान भरती है। अमीना बेगम, बंद करो अपनी बकवास और ख़बरदार आइंदा शबनम का नाम लिया तो तुम इस लड़की की ग्रेटनेस का अंदाज़ा भी नहीं कर सकती। वो थी जिसने मुझे शादी में शिरकत करने पर मजबूर किया था, वरना तुम्हारा बेटा बाप के होते हुए भी यतीमों की तरह बैठा होता। उन्होंने फेंकने के अंदाज में किताब मेज़ पर रखी और गुस्से में बाहर निकल गए। अमीना ने अब अनस की तरफ देखा। तुम भी कुछ कह लो, अब जा कहाँ रहे हो? उसे उठता देखकर वो नाराज़ी से बोली। कमरे में जा रहा हूँ सोने। माँ के पास बैठते तुम्हें तकलीफ़ होती है। अम्मी, सुबह मुझे जल्दी उठना है, इंटरव्यू है मेरा एम्बेसी में। एम्बेसी में? वो चौंक कर बोली। क्यों? मैंने ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के लिए अप्लाई किया है। तुम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो और मुझे बताया भी नहीं? यकीनन तुम्हारे बाप ने तुम्हें ये मशवरा दिया होगा। वो चाहते हैं मेरे बेटे मुझसे दूर हो जाएं।
वो एक पल में जज्बाती हो गई थी। अनस ने अफसोस से सर हिलाया। अम्मी, पता नहीं आप खुद से अंदाजे कैसे लगा लेती हैं। अब्बू तो जानते भी नहीं कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ। उसके कहने पर अमीना नजरें चुरा कर रह गई। कितने अरसे के लिए जा रहे हो? पता नहीं, अभी मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं, कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। अनस, रुको, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जी। वो पलटकर उन्हें देखने लगा। तुमने नेहा की बहन देखी है? कौन सी बहन? इसकी तो कई बहनें हैं, वो कोफ्त भरे अंदाज में बोला। अरे वही शुमाइला, नेहा से छोटी है, डॉक्टर बन रही है। वो जो वलीमे वाले दिन गुलाबी लिबास में थी, वो जिसके बाल सुनहरी रंग के थे। वो उसे बड़ी तफसील से बता रही थी। अम्मी, वहाँ इतनी लड़कियाँ थीं, अब मुझे क्या पता गुलाबी लिबास में कौन थी, और आप क्यों इसके बारे में पूछ रही हैं? क्योंकि नेहा बता रही थी उसकी बहन और उसके पेरेंट्स को तुम बहुत अच्छे लगे हो। वो अपनी बहन का रिश्ता तुमसे करवाना चाहती है। वो बड़े जोश से बताकर उसका चेहरा देखने लगी। उन्हें लगा वो भी उनके जितना खुश होगा, लेकिन उसके तासुरात उनके बरक्स थे, सख्त और पथरीले। आपने क्या मुझे दिलावर समझ रखा है? मतलब क्या है तुम्हारा? उन्होंने नाराज़ी से अनस को देखा। लोग तो ऐसे रिश्ते के लिए जूतियां घिसा देते हैं, और यहाँ बिन मांगे अल्लाह अपना करम कर रहा है और तुम कुफराने नेमत कर रहे हो। अम्मी, मैं बिकाऊ नहीं कि कोई मेरी कीमत लगाए और हासिल कर ले। मैं शादी अपनी मर्जी से करूँगा, ऐसी लड़की से जो मुझे समझ सके, मुझे मोहब्बत, इज्जत और सुकून दे सके। और मैं जब भी शादी करूँगा जहेज़ बिल्कुल नहीं लूँगा। उसने जैसे उन्हें जताया था। हाँ तो ना लो, पर मिल तो लो, लड़की बहुत अच्छी है। अम्मी, अब के वो झिंझलाकर बोला, जब मुझे उससे शादी करनी नहीं तो मिलूं क्यों? कहीं तुम्हारे इनकार की वजह शबनम तो नहीं? वो शक्की अंदाज में उसका चेहरा देखने लगी। खुदा के लिए अम्मी, बस कर दें। उसने बाकायदा उनके आगे हाथ जोड़ दिए। आपको यही परेशानी है ना कि मैं शबनम से शादी ना कर लूँ? तो तसल्ली रखें, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। लेकिन साथ आप ये भी जान लें, मुझे नेहा की बहन में भी कोई इंटरेस्ट नहीं, कहकर वो रुका नहीं। दोस्तों, ये था वो एक दरी चाय किरण का चौथा हिस्सा। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।